Good morning, children. Hope you all are fine. Children, till now we have studied about the double side accounting equation. We were studying accounting equation topic, and in this topic till now we have studied about those transactions which were affecting both sides of the equation, that is the right hand side which was the capital and the liability side, and the left hand side that was the asset sides. The seven transactions were there. I told you those transactions till yesterday, and today we will be beginning with those transactions which will be affecting only one side of the equation. Either it is the asset side or the liability side. So I think all of you have done the questions regarding the previous topic affecting both the sides. Now children, let us discuss the transactions which affect the single side of the equation. Either it affects the asset side or the liability side. So the very first transaction which affects the asset side is credit sales. हमने पढ़ा था गुड्स परचेज फ्रॉम राम, एक ट्रांजेक्शन पढ़ा था हमने. Suppose in the transaction in the question it is mentioned sold goods to Sohan. Only this much is mentioned. If it is mentioned cash sales या sold goods for cash or sold goods to XYZ for cash, तो इसका मतलब होता है कि the goods are sold for cash. ठीक है. But if it is like कि credit sales है, okay, credit sales है और कैश सेल्स भी होती है, लेकिन अगर प्रॉफिट पर नहीं होती तब भी ये सेम होता है. तो इफ क्रेडिट सेल्स इज देयर, तो क्या होगा? क्रेडिट सेल्स से आपने सेल किया है, आपके पास से गुड्स जाएंगे. दैट मीन्स यू विल सबट्रैक्ट फ्रॉम गुड्स एंड यू विल ऐड टू डेटर्स. दैट मीन्स one more column will increase on the asset side in the name of debtors, and that much amount of sales amount will be added to the debtors account. Now the second transaction for the same is cash purchases. If cash purchases is there, आपने परचेज किया है और कैश में किया है, मीन्स पैसा दिया माल लिया. तो जब माल लिया आपने तो हम गुड्स में ऐड करेंगे, और पैसा दिया तो पैसा दिया तो कहां से माइनस हो जाएगा? कैश से माइनस हो जाएगा. ओके. देन चिल्ड्रन, द थर्ड ट्रांजैक्शन इज which affects the asset side is related to prepaid expense. हमने पढ़ा था चिल्ड्रन accrued incomes and unearned incomes, that is income received in advance. उसी तरीके से the same thing happens with expenses also. Expenses can be prepaid and expenses can be outstanding. Means if the expenses are outstanding, इसका मतलब है आपको पे करना था पर आपने अभी तक उसको पे नहीं किया है. एंड प्रीपेड एक्सपेंस होता है कि आपने एक्सपेंसेस को एडवांस में पे कर दिया है. सपोज इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आपने एक सैलरी दे दी है एम्प्लॉय को 13 मंथ्स की, तो नौ ये आपकी असेट हो गई है कि आप उससे 1 मंथ एक्स्ट्रा वर्क ले सकते हो. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फर्म के लिए क्या होते हैं? असेट्स होते हैं. एंड इसके लिए वी क्रिएट अ सेपरेट कॉलम इन द नेम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस. हम एक नया कॉलम बनाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, लाइक अक्रूड इनकम्स के नाम से हमने क्रिएट किया था. इन द सेम मैनर वन कॉलम इज मेड फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस. एंड पे कर दिया है, पे कर दिया मीन्स हमारे पास से कैश चला गया है, तो वी विल सबट्रैक्ट इट फ्रॉम कैश ऑल्सो. कैश में से माइनस होगा असेट साइड में, एंड एक नया कॉलम बनेगा ऑन द असेट साइड इन द नेम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड दिस विल बी एडेड टू दैट प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट. देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज चिल्ड्रन रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ये ट्रांजेक्शंस थे जो असेट साइड को अफेक्ट कर. वन मोर ट्रांजेक्शन which affects only the asset side is purchase of an asset. Purchase of asset. आपने कोई asset खरीदी है, obviously जब आपने खरीदा होगा तो आपने पे कर दिया होगा. Suppose I have purchased machinery. मैंने मशीन खरीदा है, मशीन खरीदने के लिए मैंने कैश पेमेंट किया है, तो one asset is increasing. मशीनरी खरीदी, मशीनरी मेरे पास आई, इट इज इंक्रीजिंग.
and one asset is decreasing, that is I am paying in cash, so cash is decreasing. तो what happens जब भी हम कोई asset purchase करते हैं तो on the asset side suppose it is machinery, तो I'll create one more column in the name of machinery and I'll add in the machinery and I'll subtract it from cash. कैश में से माइनस होगा एंड मशीनरी में प्लस होगा. चिल्ड्रन ये देखिए 4 ट्रांजेक्शंस है, 4 ट्रांजेक्शंस चारों असेट साइड के हैं. वन इज इंक्रीजिंग एंड द अदर वन इज डिक्रीजिंग. देयरफॉर जो बैलेंस होता है, जो इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है इक्वेशन पर, वो नील आ जाता है. सपोज इफ 10,000 इज डिक्रीजिंग तो साइमल्टेनियसली 10,000 इज इंक्रीजिंग. 5,000 is increasing, 5,000 is decreasing. So what happens when on the same side one item increases and the other item decreases, the balance is equal. This was about the asset side. Now let us talk about the liability side. Like कुछ ऐसे transactions होते हैं जो only liabilities को affect करते हैं. So the first transaction which affects only the liability side is outstanding expenses. It is just opposite to prepaid expenses. Prepaid expenses are our assets, outstanding expenses are our liabilities. क्यों? क्योंकि हमें पे करना था, हमने अभी तक पे नहीं किया है, पर we have to pay. ये हमारी liability है. तो what will happen? One column will increase in the liabilities, not in capital, in the liabilities, in the name of outstanding expenses, and you will add this outstanding expense in that. Suppose outstanding rent is there, तो आप outstanding expense के नाम से you will create a column and you will add outstanding rent. उसमें add करोगे, transaction में लिखोगे outstanding rent, amount लिखोगे outstanding expenses liabilities side में, and it will be subtracted from the capital. क्योंकि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कहाँ से सबट्रैक्ट करते हैं? अपनी कैपिटल से सबट्रैक्ट करते हैं. इस ईयर से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई हमने इसको कहाँ से माइनस करा है? कैपिटल से माइनस करा है. नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड कैन बी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस भी तो एक्सपेंस थे, हमने वहाँ तो कैपिटल से माइनस नहीं किया, तो वहाँ हमने उसको कैपिटल से सबट्रैक्ट इसलिए नहीं किया चिल्ड्रन, बिकॉज वहाँ पर क्या था, वो एक्सपेंसेस आपके इस ईयर से रिलेटेड नहीं थे, वो एडवांस में थे, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थे. दैट्स वाई आपने उसको कैपिटल से सबट्रैक्ट नहीं किया था. यहाँ पर ये आपके इस ईयर से रिलेटेड है, दैट्स वाई यू विल सबट्रैक्ट इट फ्रॉम द कैपिटल. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है चिल्ड्रन? जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है वो कैपिटल है, क्योंकि मैं बिजनेस की ओनर हूँ. अब उस पर क्या होता है आपको पता है, बिजनेस और बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट पार्टीज, एंटिटी दोनों की अलग अलग होती है. तो व्हाट हैपेंस, जो कैपिटल लगाता है बिजनेसमैन, उस कैपिटल पर, उस अमाउंट पर बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना होता है. अब जब बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना है उस पर, तो बिजनेस इंटरेस्ट देगा. बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है. एक्सपेंसेस हम कहाँ से माइनस करते हैं? कैपिटल से माइनस करते हैं. तो इट विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. पर किस पर इंटरेस्ट लग रहा है? अगर मैं लोन की बात करूं कि लोन पर इंटरेस्ट लगता है तो लोन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है. इन द सेम मैनर अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट लगता है तो कैपिटल भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो एडेड टू द कैपिटल. मुझे इंटरेस्ट मिला कैपिटल पर, उससे मेरी कैपिटल इंक्रीज हुई, एक बार मैंने ऐड कर दिया. बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस होते हैं, तो कैपिटल से ही हमने उसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया. तो कैपिटल में ही ऐड होते हैं और कैपिटल से ही माइनस होते हैं. वन मोर आइटम इज देयर, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. एक और आइटम है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? इसका भी सेम इम्पैक्ट होता है बच्चे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? मैंने ड्राइंग्स कुछ पैसा बिजनेस से निकाला है अपने पर्सनली उसके लिए, उस पर मुझे बिजनेस को एक तरीके से मैंने लोन लिया है बिजनेस से, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. जब मैं इंटरेस्ट दूंगी तो वो बिजनेस के लिए इनकम है. इनकम्स हमारी कहाँ ऐड होती हैं? कैपिटल में ऐड होती हैं. और मेरी ही कैपिटल है, मुझसे इंटरेस्ट ले रहा है तो वो मेरी कैपिटल से ही क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो होता है चिल्ड्रन, इट इज ऑल्सो एडेड टू द कैपिटल एंड इट इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल साइमल्टेनियसली.
तो ये 3 आइटम्स है जो लायबिलिटी साइड को अफेक्ट करते हैं, कुछ आइटम्स आपने पढ़े थे जो ओनली असेट्स को अफेक्ट करते हैं, एंड सर्टेन ट्रांजेक्शंस वर देयर दोज अफेक्ट बोथ द साइड्स साइमल्टेनियसली, असेट्स एंड लायबिलिटीज। हो सकता है एक एक अकाउंट को अफेक्ट करे, हो सकता है एट अ टाइम मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। लाइक जैसे हमने पढ़ा था एक ट्रांजेक्शन कि सेल किया था कैश पे और प्रॉफिट में था, तो कैपिटल भी अफेक्ट हुई थी, गुड्स भी अफेक्ट हुए थे और कैश भी अफेक्ट हुआ था। तो चिल्ड्रन, दिस इज बेसिकली व्हाट अकाउंटिंग इक्वेशन इज, हम कैसे करते हैं। एंड एट लास्ट इतने सारे ट्रांजेक्शंस हमने पढ़े हैं, पर द इम्पैक्ट at last is equal on both the sides, that is on the liabilities side and on the assets side. So this was all about accounting equation, children. You have to do questions from your book, and any doubts you can just share your doubts with me. So this is all for today. We have completed the chapter. Tomorrow, children, we will be starting with the rules of debit and credit, कि बेसिकली क्या होता है डेबिट और क्रेडिट, जहाँ से हमारा अकाउंटिंग जो जनरल होगा उसमें डेबिट और क्रेडिट ही होता है। तो क्या होता है, व्हाई इट इज नेसेसरी, क्या रूल्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के। 2 अप्रोचेज आर देयर, मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। तो वी विल बी स्टडिंग दीज 2 अप्रोचेज, द रूल्स, एवरीथिंग टुमारो। थैंक यू चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर द डे।